Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So, this is the channel you're watching right now. You can subscribe to this channel to get more updates. Apart from that, you can follow me on LinkedIn. This is my profile. You can follow me with the name Aditi Arya, as well as I'm on Twitter. This is my Unacademy profile. You can follow me on Unacademy with the name Aditi Vinod Arya, and I teach for NTA UGC NET category. There are a lot of special classes going on, so you can avail the benefit by downloading Unacademy app. Apart from that, you can also follow the Facebook page called Learning to Learn to get the latest updates, as well as the Instagram, so that you're updated. Apart from this, if you're not on Unacademy, this is what you're missing. We had a complete course on human resource management starting from today, that is on 20 June. We had our first class at 5 p.m. So you missed it, and this would be for 10 days from 20 June to 30 June. Apart from this, these are the regular classes which I'm taking every day. All these classes will be till the end of June. So it's at 9:05, 9:40 and 10:15. Make sure you do join these particular special classes free of cost and avail the benefit. As well as if you want to join the plus classes, you can do one thing. You can use Aditi Live referral code. I'll just show it to you. This is the referral code to get 10% off on Unacademy subscription. So let's start with today's topic. टू लर्न. सो आज का हमारा टॉपिक होगा ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में क्लासिकल थ्योरी को थोड़ा डिटेल में देखने का. अगर आपने इसी सीरीज में लास्ट वीडियो देखा हो तो आपने रियलाइज किया होगा कि हम लोग अभी तक कर चुके हैं दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है ये मैंने आपको एंटायरली इंग्लिश में एक्सप्लेन किया अलग सीरीज में, और यहाँ पर हम हिंदी में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है और काफ़ी सारी चीज़ें. अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन थियरी को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं. इसके 3 बेसिक तरीके हैं जो आप पीछे देख पा रहे हैं. द फर्स्ट वन इज क्लासिकल थियरी, जो दूसरी है वो न्यू क्लासिकल थियरी है, और जो थर्ड वन है वो सिस्टम थियरी या कंटिंजेंसी थियरी. आज हमारा फोकस रहेगा क्लासिकल थियरी. क्लासिकल थियरी स्टार्ट करने से पहले या पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके बारे में 2-3 चीज़ें पहले ही बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समराइज्ड वे में इसको समझने में आसानी रहे. सबसे पहली बात, क्लासिकल थ्योरी जो देने वाले पर्सन्स हैं वो मैक्स वेबर सर हैं, हेनरी फ्योल सर हैं एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर सर हैं. और स्पेसिफिकली हम बात करें मैक्स वेबर सर की, तो मैक्स वेबर सर ने क्लासिकल थ्योरी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया. उन्होंने ये अग्री किया या उन्होंने ये माना कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उनके साथ हमें फॉर्मल स्ट्रक्चर रखना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं रखना चाहिए. और यहाँ इंसानों को एज अ मशीन माना गया है. जैसे मशीन काम करती है वैसे ही इंसान काम करते हैं. और लास्ट चीज़ ये थी कि जो भी इंसान है वो सिर्फ पैसे से, मतलब इकोनॉमिक टर्म से ही मोटिवेट हो सकते हैं. उसके अलावा इंसान मोटिवेट नहीं हो सकता. तो अगर इंसान को मोटिवेट करना है तो आपको उसको इकोनॉमिक टर्म में ही हेल्प करनी होगी. अब क्लासिकल थियरी में ही आगे बढ़ते हैं. मैं इस लाइन से पढ़ना चालू कर रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं. और अगर आपको नहीं समझ में आए तो इवन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं. This theory says that environment does not play any role for the effectiveness of the organization. This theory has neglected many influential environmental factors which are important for the organization. Along with this, many negative environmental factors have been neglected by the theory. This theory emphasizes most upon the internal environment and the management organization. This theory emphasizes that the managers and the top level executives are those who are highly qualified, whereas the employees and the laborers are those units who does not have any experience, knowledge or intelligence. They are mere hard workers who have
work for the organization. This theory holds that the main function of management is planning and establishing control within the organization, and through this control the employees of the organization are compelled to work according to the organization norms that are rules and regulation. So ये जो भी मैंने पैरा पढ़ा है इसमें क्लियरली यही मेंशन किया गया है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स या कोई और चीज़ मैटर ही नहीं करती. यहाँ पर यही मैटर करता है कि मैनेजर्स बहुत स्किल्ड पर्सन्स होते हैं, उनको नॉलेज होती है, उनको उनके अंदर स्किल होता है, इंटेलिजेंस होता है, जबकि वर्कर्स या लेबरर्स सिर्फ काम करते हैं पैसे के लिए, उसके अलावा उनमें कोई इंटेलिजेंस स्किल या नॉलेज नहीं होता. और जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स कोई मायने नहीं रखते, उनके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है. ये समराइज वे है इसको समझाने का. अब इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं इन अ डिटेल्ड मैनर. सबसे पहले दिस स्टडी इज बेस्ड ऑन अकाउंटेंसी मॉडल. अकाउंटेंसी में सिर्फ डेबिट या क्रेडिट होता है. अकाउंटेंसी सिस्टम बहुत ही रिजिड होता है. इसी तरह से उन्होंने ये बोला है कि ये सिस्टम भी काफी हद तक रिजिड है. यहाँ पर एम्प्लॉयज वही करेंगे जो उनसे कहा जाएगा. यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का कोई स्कोप नहीं है. ठीक है. द नेक्स्ट देयर एग्जिस्ट फॉर्मल रिलेशनशिप. यस, फॉर्मल रिलेशनशिप ज्यादातर होता है. इनफॉर्मल रिलेशनशिप इग्नोर किया जाता है. इनफॉर्मल रिलेशनशिप ना हो तो ही अच्छा, ऐसा बोला गया है इस थियोरी में. दिस थियोरी इज बेस्ड ऑन हाई स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कर्स एंड डिविजन ऑफ लेबर. यस, सारे जो वर्कर्स होंगे वो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कैटेगराइज होंगे और वो प्रेशर में ही काम कर पाएंगे, ऐसा माना गया इस थियोरी में. दिस थियोरी बिलीव्स अपॉन मनी एज द बिगेस्ट मोटिवेटर. यस, कि इकोनॉमिक टर्म्स में ही हम बात करेंगे, पैसा ही एक एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर रहेगा. उसके अलावा एम्प्लॉय किसी और चीज से उतना मोटिवेट नहीं होगा जितना पैसे से हो सकता है. ये फोर्थ पॉइंट था. फिफ्थ पॉइंट इन दिस थियोरी, ये फिफ्थ पॉइंट, इन दिस थियोरी ईच एम्प्लॉय वर्क्स विद हिज ओन स्पेशलाइजेशन वे ऑफ गिवन टाइम. एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वो पर्सन काम करता है. दिस थियोरी बिलीव्स दैट द फॉल्स और द एरर्स कमिटेड बाय द एम्प्लॉय शुड बी पनिश्ड. इसका मतलब अगर एम्प्लॉय से कोई गलती हो जाती है या एम्प्लॉय कोई भूल कर बैठता है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. ये स्पेसिफिकली बोला गया है यहाँ पर, ताकि वो बंदा दोबारा वैसे ही गलती ना कर पाए. नेक्स्ट है, दिस थियोरी बिलीव्स दैट next one, this theory believes that employees of the organization are greedy and selfish. यहाँ पर ये भी माना गया है कि जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं वो लालची होते हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के अलावा वो किसी और रीजन की वजह से काम नहीं करेंगे. This theory believes that because of the money is the biggest motivator which makes the employees to work for the organization for his own self, दिस एनकरेजेस स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो सिर्फ पैसा ही एक चीज है जो मोटिवेट करता है, तो पैसा ही एक चीज है जो स्टेबिलिटी भी लाएगा. जितना हम एम्प्लॉय को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहते हैं या जितना हम उससे काम करवाना चाहते हैं वो सिर्फ मनी के ऊपर बेस्ड रहेगा और किसी चीज पे नहीं. सो ये सारे फीचर्स थे ट्रेडिशनल थ्योरी के, क्लासिकल थ्योरी के, जिसे मशीन थ्योरी भी कहते हैं. ठीक है. अब इसी थ्योरी को हम 3 हिस्सों में और क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहला है ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो मैक्स वेबर सर ने दी है. देन साइंटिफिक थ्योरी जो एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ने दी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो हेनरी फ्योल सर ने दी है. इसके बारे में मैं एक छोटा सा आपको बात बता देती हूँ. ब्यूरोक्रेसी थ्योरी बहुत ही रिजिड थ्योरी है. जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में तब आपको पता चलेगा. ये क्लासिकल को प्योरली मान के चलती है और क्लासिकल अप्रोच के ही बेसिस पे पूरी तरह काम करती है. तो ये मैक्स वेबर सर ने दी है. सेकंड, साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट हल्की सी डिफरेंट है बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है. एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बाकायदा अपने एम्प्लॉयज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद उन्होंने ये थ्योरीज दी थी. एफ.डब्ल्यू. टेलर पेशे से एक इंजीनियर थे और वो लो लेवल मैनेजमेंट में काम करते थे और एम्प्लॉयज के साथ या लेबर्स के साथ उनका सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट था. तो इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते थे और बाद में उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए. और हेनरी फ्योल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फादर भी माने जाते हैं. सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कभी भी हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन दैट इज F.W. Taylor. Who's the father of scientific management? F.W. Taylor. Okay.
द नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्योल सर ने दिया था। हेनरी फ्योल सर ने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सब कुछ देखते हुए ये थ्योरीज दी थी, सबको ऑब्जर्व कर करके थ्योरीज दी थी। हेनरी फ्योल ने 14 थ्योरीज दी थी, 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और हेनरी फ्योल काम करते थे एट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो लो लेवल में काम नहीं करते थे। तो उनके जो भी ऑब्जर्वेशंस है उसके हिसाब से जो उनके सजेशंस है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करते हैं। जबकि अगर आप बहुत गौर करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि हेनरी फ्योल के जो थ्योरीज है वो और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट हो सकते हैं, जबकि एफडब्ल्यू टेलर का सर का ज्यादा फोकस था एट लो लेवल, एट प्रोडक्शन लेवल मेनली, जहां पे एम्प्लॉय से आपको काम निकलवाना है। सो ये 3 बेसिक थ्योरीज हैं क्लासिकल थ्योरी के अंदर। अभी तक हमने सिर्फ क्लासिकल थ्योरी को डिटेल में पढ़ा है कि क्लासिकल थ्योरी है क्या, क्लासिकल थ्योरी के अंदर और कितनी थ्योरीज आती हैं, उनके मेन प्रोमिनेंट्स कौन है या मेन ऑथर्स कौन है, और क्लासिकल थ्योरी किस चीज पे बिलीव करती है, यही हमने किया। अब जब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें ब्यूरोक्रेसी थ्योरी समझेंगे और फिर एक एक थ्योरी करके मैं कोशिश करूंगी मैं हर रोज अपलोड करूं, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, देयर आर वेरियस थिंग्स गोइंग ऑन। हो सकता है मैं डिले कर दूं, बट आई विल मेक श्योर कि हर रोज एक वीडियो तो मैं अपलोड करूं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, ताकि जल्दी से जल्दी ये सब्जेक्ट खत्म हो जाए और फिर हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर पाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको नेक्स्ट क्लास भी देखनी हो। इसके पहले के सारे वीडियोस देखने हो तो प्लेलिस्ट में आपको लास्ट में यहाँ पे बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, स्टे एट होम, वेयर अ मास्क। बाय एवरीवन।